welcome back to my channel Study with Zanav. So today we are going to do one more chapter of class 10th biology, that is life processes. This chapter is basically divided into many parts, that is nutrition, respiration, transportation, excretion. And in this lecture we are going to complete all nutrition, and in the other lectures we will do all other parts. So beginning with nutrition. What is basically nutrition? So the word nutrition has been derived from the Greek word nutrito, which means to nourish. जो न्यूट्रिशन वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड न्यूट्रिटो से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है टू नरिश. So it may be defined as a collective phenomena in which an organism is capable of capturing food, essential not only for maintaining vital life processes but also for repair and growth of tissues. In other words, nutrition is a process of acquiring energy and materials for growth, development, repair and reproduction. So the whole process of nutrition involves ingestion of food. Ingestion मतलब food को अंदर लेना, taking in of food. So the whole process of nutrition involves ingestion of food, its digestion by various enzymes and juices. हमारी बॉडी में बहुत सारे enzymes और juices होते हैं, जिसकी वजह से जो वो food है पूरी बॉडी में digest हो जाता है, उससे हम energy को extract करते हैं. ठीक है. So the whole process of nutrition involves ingestion of food, its digestion by various juices and enzymes into smaller, simpler and soluble molecules. हम उस खाने को हम खाना लेते हैं तो वो एक बड़ा molecule होता है, तो digestion के through by various juices and enzymes हम उस खाने को smaller, simpler and soluble molecules में convert कर देते हैं. So it's digestion by various juices and enzymes into smaller, simpler and soluble molecules. The absorption of the soluble food. And lastly, expulsion of undigested matter formed during the process. तो ये सारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है. जो न्यूट्रिशन है वो हम ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाते हैं. So basically, organisms differ from each other in their modes of nutrition. हर एक organisms जो है एक दूसरे से differ करते हैं. अमीबा का अलग है, वहीं आपके plants का अलग होता है, हम organisms का अलग होता है. So organisms differ from each other in their modes of nutrition. So the method of obtaining food by an organism is called mode of nutrition. The method of obtaining food, based on the method of obtaining food, nutrition of all the organisms may broadly be grouped into two categories. दो तरीके के nutrition होते हैं. एक होता है autotrophic nutrition and the second one is heterotrophic nutrition. Talking about autotrophic nutrition. So the term has been derived from two Greek words. Auto means self and troph means nutrition. Thus, autotrophic means self-nutrition, independent nutrition. So in this mode of nutrition, organisms are able to build up their own organic food from inorganic raw materials with the help of light. It is a mode of nutrition in which organisms are able to build up their own organic food from inorganic raw materials. वो raw materials क्या होते हैं? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, आपका वाटर, alright, and chlorophyll जो कि plants में present होता है. With the help of light. Light कौन सी? Sunlight. Alright. So the organisms performing autotrophic nutrition, जो organisms autotrophic nutrition करते हैं उनको autotrophs बोला जाता है. So the organisms performing autotrophic nutrition are called autotrophs. उनको हम autotrophs बोलते हैं. This mode of nutrition is found in green plants में होता है. Some bacteria जैसे कि green sulfur bacterium, chlorobium and some protozoa जो है autotrophic nutrition दिखाते हैं, जो अपना खाना खुद synthesize करते हैं. Synthesize मतलब पकाना, बनाना, ठीक है. So वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको ऑटोट्रोफ्स बोला जाता है. और ये कुछ ग्रीन प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ में देखा जाता है. सो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स और ऑटोट्रोफ्स आर सेल्फ नरिशिंग, वो खुद का अपना नरिशमेंट खुद करते हैं. सो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स और ऑटोट्रोफ्स आर सेल्फ नरिशिंग. अब इनको प्रोड्यूसर्स भी बोला जाता है एंड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स एंड आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. ऑटोट्रोफ्स को प्रोड्यूसर्स भी बोला जाता है. These organisms have a capability of synthesizing or to synthesize all the essential organic compounds. इनमें एक capability है to synthesize all the essential organic compounds को ये synthesize कर सकते हैं. ठीक है. From inorganic compounds like CO2 and water से इनमें एक capability होती है इन सबको organize करने
सिंथेसाइज करने की बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, जैसे कि वाटर है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस. किस प्रोसेस से खुद का खाना बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. So moving on to now second mode of nutrition, that is heterotrophic nutrition. अब heterotrophic nutrition क्या होता है? So the word heterotrophic is derived from two Greek words. Hetero means different and troph means nutrition. Heterotrophic nutrition is a mode of nutrition where an organism depends upon other organisms for energy requirements. In this mode of nutrition, an organism directly or indirectly depends upon autotrophs for their food. वो ऑटोट्रोफ्स पर ही डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए. तो वो ऑटोट्रोफ्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं. सो इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन ऑटोट्रोफ्स फॉर देयर फूड. ये अपने फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए ऑटोट्रोफ्स पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन ऑटोट्रोफ्स पे अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं. So the organisms that depend upon outside sources for obtaining organic nutrients are called heterotrophs. जैसे हम उनको जो खुद बनाते हैं खाना, उनको autotrophs बोलते हैं, इनको heterotrophs बोलते हैं. So the organisms that depend upon outside sources for obtaining organic nutrients are called heterotrophs. It is a characteristic feature of all animals and non-green plants that are unable to utilize carbon and synthesize organic compounds necessary for life, but depends upon organic sources of carbon. They are thus depend upon autotrophic organisms, जैसे कि हमारे green plants हैं, and are called heterotrophs. इनको heterotrophs बोला जाता है. So इनको हेटेरोट्रोफ्स बोला जाता है. हेटेरोट्रोफ्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंज्यूमर्स. जैसे उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, इनको कंज्यूमर्स बोलते हैं, क्योंकि जो वो खाना बनाते हैं वो उनको कंज्यूम करते हैं, वो उन पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं. सो हेटेरोट्रोफ्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंज्यूमर्स एज दे डिपेंड डायरेक्टली और डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. So based on the type of food available and the way it is obtained, heterotrophic nutrition is of the three types के होते हैं, following types के होते हैं. एक आपका saprophytic nutrition होता है, एक आपका parasitic nutrition होता है, और एक आपका holozoic nutrition या holotrophic nutrition भी उसको बोला जाता है. So एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहले what is saprophytic nutrition? Saprophytic nutrition क्या होता है? So the word saprophyte is derived from two Greek words. Sapro means rotten and troph means nutrition. In this type of nutrition, an organism lives or grow on dead and decaying organic matter such as rotten leaves, dead animals and household wastes. The food is digested outside the cell and even in the body of the organism. So the organism secretes digestive juices that contains enzymes directly on the food पे वो enzymes जो है secrete करता है वो organism. ठीक है. So the digestion makes the food soluble. Digestion से food soluble बन जाता है and is then absorbed by the organism. फिर organism उस food को absorb कर लेता है. ये basically ये dead decaying matter पे ये nutrition होता है, saprophytic nutrition. Some protozoa बोल सकते हैं, some mushrooms हो सकते हैं, जो सम नॉन ग्रीन फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं. वो लोग क्या करते हैं, वो शो करते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी इसको बोला जाता है. Second is parasitic nutrition. In this type of nutrition, an organism lives totally at the expense of others and derive its food material and shelter from the others. एक organism में totally दूसरे organism के expense पे रहता है और अपना जो food material है, अपना जो shelter है, वो दूसरे organism से derive करता है. These organisms which derive the food material are called parasites. जो food material derive करते हैं उनको parasites बोलते हैं. लेकिन and the organism from which the food is derived, जिससे फूड डिराइव किया जाता है उसको होस्ट बोलते हैं, आर कॉल्ड होस्ट. सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज टर्म्ड एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. इसी न्यूट्रिशन को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप. इनको पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप भी इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है.
It is also known as parasite host nutrition relationship, and in this type of nutrition the parasite is benefited. पैरासाइट को तो बेनिफिट मिल गया क्योंकि वो अपना खाना डिराइव कर पा रहा है, अपना शेल्टर, अपना फूड मटेरियल डिराइव कर पा रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, लेकिन जो होस्ट होता है दैट इज एडवर्सली इफेक्टेड क्योंकि उसमें से डिराइव किया जा रहा है, तो उसकी हेल्थ पर इफेक्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपकी टेप वर्म होते हैं आपके स्टमक में, टेप वर्म हो सकते हैं, राउंड वर्म हो सकते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये आपको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं. ऑलराइट, अब पैरासाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स. पैरासाइट्स भी जो होते हैं दो तरीके के होते हैं. एक एक्टोपैरासाइट्स होते हैं और एक एंडोपैरासाइट्स होते हैं. एक्टोपैरासाइट्स लिव ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द होस्ट, वो होस्ट की बॉडी के आउटर सरफेस पे रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक बेड बग होता है और बॉडी लॉस होता है, ये सारे एक्टोपैरासाइट्स है. एंडोपैरासाइट्स लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, वो होस्ट की बॉडी के अंदर ही रहते हैं. जैसे कि मैंने बोला टेप वर्म है, राउंड वर्म है, दीज आर एंडोपैरासाइट्स इन द बॉडी ऑफ इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, सो आई होप पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हमारा है होलोजोइक न्यूट्रिशन, या इसको होलोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी बोला जाता है. सो the word holotrophic is derived from two Greek words. Holo means whole and troph means nutrition. So holotrophic nutrition is a kind of nutrition where in which an organism generally takes complex food by the process of ingestion. Ingestion का मतलब ही होता है intake of complex food. ठीक है, takes complex food by the process of ingestion. वो उसको ingest करता है, अंदर लेता है. So the complex food undergoes proper digestion before it is assimilated into the cells and utilized. वो cells जब उसको यूटिलाइज करने से पहले, उसको एसिमिलेट सेल्स करने से पहले जो उस खाने को है वो अंडरगोज प्रॉपर डाइजेशन के अंडरगोज करता है, उसके बाद ही हम उसको एसिमिलेट करते हैं सेल्स में और यूटिलाइज करते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए. ठीक है, सो सिंस इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन भी बोला जाता है. होलो को तो आपको मैंने बोला होल, और जोइक का मतलब होता है एनिमल्स. सिंस इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलो मीन्स होल एंड जोइक मीन्स एनिमल्स. जो फूड होता है द फूड में कंटेन अदर एनिमल्स, प्लांट्स एंड इट पार्ट्स, इसमें से कुछ भी फूड जो है कंटेन कर सकता है. Now, depending on the source of food, holozoic organisms are of three types. हम सबको पता है carnivores, herbivores and omnivores. Herbivores आपका घास फूस खाते हैं, other plants खाते हैं, और carnivores flesh of other animals खाते हैं, और omnivores both. They eat both plants as well as the flesh of other animals. So I hope ये सारा autotrophic और heterotrophic nutrition, इसके types आपको broadly अच्छी तरीके से clear हो गए होंगे. अब आगे चलते हैं. अब हम बात करेंगे अबाउट स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं? सो देयर आर 5 स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं. पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा अब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन एंड पांचवा आपका होता है एडजेशन. सो वी विल स्टडी वन बाय वन. इंजेशन में क्या होता है? इट इज टेकिंग इन ऑफ सॉलिड फूड विद द हेल्प ऑफ टेम्पररी और परमानेंट माउथ. ठीक है, ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ये हम ऑर्गेनिजम्स दिखाते हैं. तो इंजेक्शन क्या होता है? इट इज टेकिंग इन ऑफ सॉलिड फूड विद द हेल्प ऑफ टेम्पररी और परमानेंट माउथ. डिफरेंट एनिमल्स शो use different organs for catching, putting in, holding the food into mouth and putting the food into mouth. So different organisms, different organs, different animals, different organs use करते हैं for catching, holding and putting the food into the mouth. So different crushing and tearing of solid food into smaller pieces is common for digestion. जो solid food हम अंदर लेते हैं तो वो digestion में हमारे mouth में जो है crush किया जाता है, tear किया जाता है, उनको small small pieces में convert किया जाता है. तो ये सब जो crushing and tearing होता है of जो solid food होता है into small pieces is common for ingestion. Second आपका आता है digestion. So the ingested food contains complex, insoluble, inorganic इसमें substances होते हैं. The conversion of complex, insoluble food ingredients into simple, absorbable form is called digestion. Digestion एक catabolic process है. एक्चुअली 2 टाइप के प्रोसेसेस होते हैं. एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है और एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है. एनाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक छोटे मॉलिक्यूल्स को प्लस एनर्जी, इसमें थोड़ी सी एनर्जी भी यूज होती है, को मिलाकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो हम उसको
एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं. ऑन द अदर हैंड कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है जब हम एक बड़े से मॉलिक्यूल को छोटे 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 पीसेस में कन्वर्ट करते हैं और एनर्जी भी उसमें हम एनर्जी भी जो है प्रोड्यूस होती है, तो उसको एक कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं. तो डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है. इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस विच अकर्स विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. हमारी बॉडी में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बहुत सारे डाइजेस्टिव ज्यूसेस होते हैं जिसकी वजह से जो डाइजेशन है वो होती है. डाइजेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स. क्लियर. देन थर्ड आपका आता है अब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्प्शन में क्या होता है? द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेजर, वहां पर जो मेजर अब्जॉर्प्शन जो खाने डाइजेस्टेड फूड की होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है. सो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द सीट ऑफ मेजर अब्जॉर्प्शन फॉर डाइजेस्टेड फूड. जो अब्जॉर्प्शन होती है डाइजेस्टेड फूड की वो आपकी मोस्ट अब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. डाइजेशन तो आपकी जो प्रोसेस होता है अब्जॉर्प्शन का, जो डाइजेशन का, वो आपका मुंह से शुरू हो जाता है, लेकिन जो मेजर अब्जॉर्प्शन आपकी डाइजेशन होती है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. So, the small intestine is the main region for the absorption of digested food. फिर आपका आता है assimilation. Inside the living cells, the absorbed food material is used for obtaining energy and formation of new components for repair and growth of cells. तो उससे एनर्जी डिराइव की जाती है, उस एनर्जी से हम जो है नए कंपोनेंट्स बनाते हैं. रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ सेल्स के लिए हम एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं जो हमने फूड खाया है उससे. सो उस एनर्जी के ऑप्टेनेशन की, खाने से उस एनर्जी की ऑप्टेन करने को ही हम एसिमिलेशन बोलते हैं. सो एसिमिलेशन इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस. ये एनाबॉलिक प्रोसेस है एज इट टेक पार्ट्स इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, fats, proteins and macromolecules. Then we have digestion. So the whole of ingested food is soldum digested. The undigested components of food are thrown out of the body as fecal matter. The process is called digestion. So I hope ये आपको सारे steps जो है holozoic nutrition के clear हो गए होंगे. Ingestion, digestion, absorption, assimilation and digestion. So now हम कुछ differences के बारे में पढ़ेंगे कि autotrophic nutrition और heterotrophic nutrition में differences क्या है. ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, फूड इज सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड. फूड खुद बनाया जाता है प्लांट्स के जरिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो फूड इज सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड. ऑन द अदर हैंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, फूड इज ऑब्टेन्ड रेडीमेड फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है. और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर. एंड फूड जो होता है, फूड इज ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑटोट्रोफ्स. फूड जो है हम ऑटोट्रोफ्स ही हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करते हैं. थर्ड आपका आता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड. एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड इन हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन. द रिक्वायर्ड एनर्जी इज already present in the food obtained from outside. So the energy required is present in the food obtained from outside. जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें क्लोरोफिल इज प्रेजेंट. उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. क्यों प्रेजेंट होता है? फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी. जो आपका सनलाइट है वो आपका कौन ट्रैप करेगा? वो आपका क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है. सो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी. और हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में ऑफकोर्स क्लोरोफिल इज एब्सेंट. Or organisms performing autotrophic nutrition function as producers, or organisms performing heterotrophic nutrition function as consumers. कुछ examples of autotrophic nutrition की green plants होते हैं, blue green algae होते हैं, some protozoa, some bacteria होते हैं. तो वो आपको मैंने एक बैक्टीरिया का नाम भी बताया, क्लोरोबियम. एक ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है क्लोरोबियम, वो एक ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है. हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म में नॉन ग्रीन प्लांट्स आपके आते हैं. हम सब एनिमल्स, सारे एनिमल्स तो हेटेरोट्रोफिक्स ही है. एंड सम प्रोटिस्ट, मेनी प्रोटिस्ट लाइक अमीबा इज ऑल्सो अ हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म. सो आई होप ये डिफरेंसेस भी आपको क्लियर हो गई होंगी. सो अब आगे चलते हैं. अब हम थोड़ी सी बात करेंगे फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? हम सब ने पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा. अब इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं. ठीक है. फोटोसिंथेसिस कुछ नहीं होता है, इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक substances with the help of sunlight
and photosynthetic pigments. So photosynthesis is a biochemical process in which simple inorganic raw materials are converted in complex organic substances with the help of sunlight and photosynthetic pigments. ये simple inorganic raw materials, ये complex organic substances, ये क्या है? सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स आपका CO2, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपका वाटर, आपका क्लोरोफिल, और आपका जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ग्लूकोज C6H12O6, आपका ग्लूकोज, आपका ऑक्सीजन और आपका वाटर, जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस की, जो प्रोडक्ट्स जो आपको मिलता है। सब आपके रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, और आपका लाइट होता है, लाइट एनर्जी, सनलाइट होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो लैंड प्लांट्स होते हैं, लैंड प्लांट्स obtain it from atmosphere से लैंड प्लांट्स को मिल जाता है, while aquatic plants absorb the same from water। और aquatic plants को कहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है? वो वाटर से absorb करते हैं, जो डिजोल्व होता है एटमॉस्फेयर का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड, तो aquatic plants उसको वहीं से absorb कर लेते हैं। So I told you about carbon dioxide. So land plants obtain it from atmosphere, while aquatic plants absorb the same from water. So atmosphere contains 0.038% carbon dioxide. It enters the leaf through stomata. जो लीव में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? कुछ नहीं, जब एक चीज लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है या हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है, उसको डिफ्यूजन बोला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड देन वाटर, जो लैंड प्लांट्स अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू देयर रूट्स, ठीक है। द अब्सॉर्ब वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू फोटोसिंथेटिक एरियाज, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है थ्रू जाइलम उनको ट्रांसफर करता है। सो मिनरल्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग विद द वाटर। पानी के साथ सिर्फ पानी अकेला नहीं जाता है, उसमें उसके साथ मिनरल्स भी जाते हैं फोटोसिंथेटिक एरियाज में। फोटोसिंथेटिक एरियाज जहाँ पे क्लोरोफिल, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि प्लांट की पूरी बॉडी में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, स्टेम में भी हो रहा है, रूट में भी हो रहा है, लीव्स में भी होता है, नहीं, एक जगह पर होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में। उसके बाद हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें। सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, प्लांट्स possess pigment molecules for absorption of light energy. There are 3 types of photosynthetic pigments: green chlorophyll, orange carotenes, and yellowish xanthophylls. So carotenes and xanthophylls are collectively called carotenoids, ठीक है, उनको collectively carotenoids बोला जाता है, ठीक है। फिर आपका लाइट आता है, कौन सी लाइट? सनलाइट, जो कि क्लोरोफिल ट्रैप करता है। क्लोरोफिल का फंक्शन ही होता है सनलाइट को ट्रैप करना। सो सनलाइट में आपका इट इज द सोर्स फॉर फोटोसिंथेसिस, और जो आपका प्लांट्स अब्सॉर्ब mostly light in violet blue या red parts of visible light. So plants absorb light mostly in violet blue or red parts of visible light. So आपका sunlight भी हो गया। अब site of photosynthesis, site की मतलब जगह, कौन सी जगह पर photosynthesis होता है? तो आपका photosynthesis होता है क्लोरोप्लास्ट में, लीव्स के क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक सेल ऑर्गेनली, एक सेल का हिस्सा है। सेल में तो बहुत सारी चीजें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। और उसी तरीके से एक क्लोरोप्लास्ट भी होता है जो कि एक सेल का पार्ट है, उसको हम बोलते हैं सब सेल ऑर्गेनली है, एक सेल का पार्ट है, तो उस क्लोरोप्लास्ट है। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। साइट को है फोटोसिंथेसिस की, क्लोरोप्लास्ट है। सो फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। सो जो अब प्लांट्स होते हैं, सो फोटोसिंथेसिस जो होता है मोस्टली टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ द लीव्स एज द प्लास्टिड्स इन द मेसोफिल सेल्स। सो ईच क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है हर एक क्लोरोप्लास्ट। सो ईच क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डिस्क्वाइड और स्फेरिकल इन शेप एंड सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। ये प्लांट की सेल के साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होता है, ठीक है। And it contains small membrane-bound structures called as thylakoids, filled up one on another to form granum. ये जो thylakoids है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे फिल करके होते हैं, एक स्ट्रक्चर्स की तरह होते हैं। जब वो स्ट्रक्चर्स की तरह होते हैं, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रानम। सो दीज ग्रानम हम एक सिंगुलर में बोलते हैं, जब हम पर्टिकुलर मतलब हम जब प्लूरल की बात करते हैं तब हम ग्राना बोलते हैं। सो दीज ग्रानास आर कनेक्टेड टू वन अनदर
These grana are connected to one another through fret channels or stroma lamellae. So the chloroplast is also filled with a proteinaceous, एक proteinaceous liquid भी chloroplast में होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा. स्ट्रोमा एक प्रोटीन का बना हुआ एक लिक्विड होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है. So the chloroplast is also filled with a proteinaceous liquid called stroma. So the grana contains the photosynthetic pigments and the stroma contains the photosynthetic enzymes. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया. अब हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स. एक दीज आर क्लासिफाइड एज एक लाइट रिएक्शंस होता है. लाइट रिएक्शन को आप फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हो, और एक डार्क रिएक्शंस होता है. डार्क रिएक्शंस को आप बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हो. सो जो लाइट रिएक्शंस होते हैं, लाइट जो होती है, लाइट रिएक्शंस एक्चुअली दे आर द रिएक्शन ऑफ दिस फेज आर ड्रिवन बाय लाइट एनर्जी. दे आर ऑफ टू टाइप्स. ये भी 2 तरीके के होते हैं लाइट रिएक्शंस. एक आपका होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर और दूसरा आपका होता है फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर. सो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होती है स्प्लिट्स ऑफ वाटर इनटू इट्स कंपोनेंट्स. लाइट एनर्जी जो है वाटर को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देती है. दैट इज हाइड्रोजन इन वाटर में. ठीक है. और फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर में क्या होता है, जो लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होती है इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ वो एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन में यूज किया जाता है. क्या, वही जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ट्रैप करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं. तो दूसरा आपका होता है बायोसिंथेटिक फेज जिसको आप डार्क रिएक्शन भी बोलते हो. सो डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज में क्या होता है, सो इट इज एक्चुअली लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस. ये लाइट पे डिपेंड नहीं करते, जरूरी नहीं है इसमें सनलाइट हो. विच कैन अकर बोथ इन लाइट एज वेल एज इन डार्क. ये लाइट में भी हो सकता है, ये डार्क में भी हो सकता है. सो इट रिक्वायर्स द एनर्जी and reducing power contained in assimilatory power of light energy. So in the presence of ATP, जो phosphoglyceric acid होता है, in the presence of ATP, phosphoglyceric acid is reduced by NADPH to form ग्लाइसिरल्डिहाइड फॉस्फेट. ठीक है. और एक पार्ट ऑफ ग्लाइसिरल्डिहाइड फॉस्फेट इज चेंज्ड इनटू डीहाइड्रोक्साई एसीटोन फॉस्फेट. द टू कंटेंट्स एंड फॉर्म ग्लूकोज. जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज अंडरगोज कंडेंसेशन टू फॉर्म रिजर्व कार्बोहाइड्रेट. उस रिजर्व कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं बच्चा, स्टार्च बोलते हैं. सो ये पूरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का. आई होप इट इज क्लियर. सो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे. सो अमीबा एक प्रोटोजोआ है. अमीबा इज अ प्रोटोजोअन फाउंड इन फ्रेश वाटर. वो फ्रेश वाटर में मिलता है. एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा, उसमें भी होलोजोइक मतलब उसमें वो स्टेप्स फॉलो होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन. सो इट इज एन ओमनिवोर फीडिंग ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये प्लांट्स पे भी फीड कर सकता है, ये एनिमल्स पे भी फीड कर सकता है. ठीक है. एंड इट्स डाइट्स इंक्लूड, इसकी डाइट में क्या आता है, बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स लाइक डायटम, माइन्यूट एल्गे एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स लाइक अदर प्रोटोजोआ, नीमाटोड्स एंड इवन डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी ये फीड कर सकता है. सो द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग स्टेप्स. सबसे पहले इंजेशन. So amoeba engulfs the microscopic food particle by forming finger-like projections called pseudopodia around it. जो pseudopodia का मतलब होता है फेक लेग्स. जो अमीबा है वो उस जो फूड पार्टिकल है, अमीबा को सेंस हो जाता है कि आसपास खाना है, तो जो अमीबा है वो उस फूड पार्टिकल के अराउंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना देता है. उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम pseudopodia बोलते हैं. सो द फूड पार्टिकल जो है, the food particle gets surrounded by the pseudopodia and reaches closer to membrane to form food vacuole. वो ये इर्द गिर्द फूड वैक्यूल बना लेता है फॉर इट्स अब्जॉर्प्शन, ताकि वो उसको अब्जॉर्ब कर सके, उस फूड पार्टिकल को अमीबा अब्जॉर्ब कर सके. दिस प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस. इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं. सो व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? नथिंग बट इंजेक्शन इन अमीबा. सो द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन टेक्स अबाउट 2 मिनट्स. इसमें लगभग 2 मिनट लगते हैं. ठीक है. सो दूसरा स्टेप आपका आता है डाइजेशन. उसने फूड वैक्यूल बना लिया. अब डाइजेशन में क्या होता है, द फूड पार्टिकल प्रेजेंट इन फूड वैक्यूल
जो होता है, जो फूड पार्टिकल प्रेजेंट इन फूड वैक्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स में की वजह से वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है अमीबा। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ पर होते हैं? प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा। अमीबा की साइटोप्लाज्म में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल में होता है वो उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन इन अमीबा। थर्ड आपका आता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है? द फूड डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स इज देन अब्जॉर्ब्ड इन द साइटोप्लाज्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से वो पूरी बॉडी में अमीबा के अब्जॉर्ब किया जाता है। मैंने अभी आपको बोला डिफ्यूजन क्या होता है? कोई भी चीज जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ या लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आती है तो हम उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोल रही हूँ अब्जॉर्प्शन। सो जो फूड डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स इज देन अब्जॉर्ब्ड इन द साइटोप्लाज्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से वो अब्जॉर्ब किया जाता है। वेल द अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन्स इन द फूड वैक्यूल। जो अब फूड अमीबा को पसंद नहीं आया, उसने अनडाइजेस्टेड रख लिया, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो फूड वैक्यूल में ही रहता है, वो अंदर नहीं आता है बॉडी के। सो इट रिमेन्स इन द फूड वैक्यूल. So if a large amount of food is absorbed by amoeba, the excess food is stored in the cytoplasm in the form of glycerol and lipids. Lipids और glycerol के फॉर्म में वो साइटोप्लाज्म में ही उसको स्टोर करके रख देता है, ठीक है। फिर आपका आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है? द डाइजेस्टेड फूड इज देन डिफ्यूज्ड इन द साइटोप्लाज्म थ्रू मेम्ब्रेन ऑफ फूड वैक्यूल विच इज देन यूटिलाइज्ड बाय द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, जो फिर सेल बाद में इस्तेमाल कर लेती है। फिर आपका आता है एजेशन। द पार्ट ऑफ फूड विच इज नॉट डाइजेस्टेड, जो फूड अमीबा डाइजेस्ट नहीं करता है, उसको पसंद नहीं आता है, द पार्ट ऑफ फूड विच इज नॉट डाइजेस्टेड एंड एसिमिलेटेड रिमेन्स इन द फूड वैक्यूल, वो फूड वैक्यूल में ही रहता है। This undigested food is then thrown out of the body सरफेस। दिस थ्रू द बॉडी सरफेस है, वो बॉडी की सरफेस है। अमीबा को जहाँ से मन किया उसने सेल वॉल को रप्चर कर लिया और उस खाने को बाहर निकाल दिया। सो एजेशन में क्या होता है? द पार्ट ऑफ फूड विच इज नॉट डाइजेस्टेड एंड एसिमिलेटेड रिमेन्स इन द फूड वैक्यूल। दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज देन थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द बॉडी सरफेस। अमीबा को कोई पर्टिकुलर स्पॉट नहीं होता है फूड को बाहर निकालने का, उसका जहां से मन कर दिया, सेल वॉल को रप्चर कर दिया और बाहर निकल गया फूड। क्लियर? सो ये पूरा न्यूट्रिशन होता है किसमें? अमीबा में। आई होप इट इज क्लियर। सो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। सो ह्यूमन बींग्स आर ओमनिवोरस इन नेचर। ह्यूमन बींग्स ओमनिवोरस होते हैं, हम सबको पता है। ओमनिवोरस क्या होता है? जो फ्लैश भी खाते हैं दूसरे एनिमल्स के और प्लांट्स भी खाते हैं। So human beings are omnivorous in nature. So human beings have a digestive system for nutrition. Digestive system is a group of organs and associated digestive glands that takes ingestion of food, its crushing, digestion, absorption of digestive materials and digestion of undigested matter. So द जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस कैनाल। उस कैनाल को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। सो द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस कैनाल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। सो जो एलिमेंट्री कैनाल इज अ ट्यूब्यूलर पैसेज। वो ट्यूब जैसे एक पूरी पैसेज होती है। एलिमेंट्री कैनाल इज अ ट्यूब्यूलर पैसेज थ्रू विच फूड पासेस। से वो माउथ से एनस तक एक्सटेंड करती है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, थ्रू विच फूड passes during its absorption and digestion. Okay, during its absorption and digestion. So it is 9 meters in length. जो elementary canal होती है वो 9 मीटर होती है लेंथ में, उसकी लेंथ 9 मीटर होती है. So अब हम एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ, उसमें बहुत चीज़ें होती है. माउथ होते हैं, टीथ होती है, टंग होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. हम इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम माउथ की बात करते हैं. सो माउथ क्या होता है? इट इज अ ट्रांसवर्स स्लिट दैट अकर्स इन बिटवीन द नोज एंड द चिन. इट इज बाउंडेड बाय टू soft, sensitive and movable lips, upper lips and lower lips. So lips क्यों होते हैं? Lips helps in the holding of food. ये food को hold करते हैं and also helps in phonation. ये phonation में भी help करते हैं. phonation यानी कि speech, बात करने में, speech में ये help करते हैं. So mouth clear. Then we have
बकल कैविटी को ऑरल कैविटी भी बोला जाता है। ये पूरी मेरी जो पूरी ये है, इसको बकल कैविटी बोला जाता है। सो जो बकल कैविटी, इट इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू फैरिंक्स। ये माउथ से फैरिंक्स तक एक्सटेंड करती है एंड लाइज इन बिटवीन द जॉज। ये टू जॉज के बीच में ये पूरी आपकी बकल कैविटी है, लाई करती है, ठीक है। सो अपर फिक्स्ड एंड लोअर मूवेबल। अपर जॉ फिक्स्ड होता है और लोअर जॉ मूवेबल होता है। लोअर जॉ मूव कर सकता है लेकिन अपर मूव नहीं कर सकता, इट इज फिक्स्ड। सो इट हैज पैलेट ऑन अपर साइड्स पे इसके पैलेट होते हैं बकल कैविटी के, एंड थ्रोट एंड टंग ऑन द लोअर साइड। टंग और जो थ्रोट होता है वो लोअर साइड पे होता है, लोअर जॉ पे होता है, एंड चीक्स ऑन द साइड्स, और चीक्स पे साइड्स पे चीक्स होते हैं। ऑल राइट। सो बोथ द जॉज कंटेन टीथ। दोनों जॉज में कंटेन होती है। अपर आप देख सकते हैं, अपर जॉ में भी टीथ है, नीचे वाले जॉ में भी टीथ होते हैं। सो बोथ द जॉज कंटेन टीथ। दोनों ही जॉज में क्या होते हैं, टीथ होते हैं। इन सेमी सर्कुलर रोज, या तो सेमी सर्कुलर रोज में बोल सकते हो या आर्चेस बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है टंग। टंग क्या होता है, इट इज अ सेंसरी muscular, movable and protrusible flat structure which is attached posteriorly over the lower jaw. जो टंग होती है एक मसल्स की बनी हुई ऑर्गन है, सेंसरी है। सेंसरी मतलब टंग को पता चल जाता है कि खाना अच्छा है, खाना अच्छा नहीं है, बिटर है, सोर है, क्या है। तो टंग के पास टेस्ट बड्स लगे होते हैं, तो टंग में टेस्ट बड्स लगे होते हैं जिससे वो क्वालिटी ऑफ फूड पता चल जाती है टंग को। सो टंग इट इज अ मस्क्यूलर, सेंसरी, मूवेबल, प्रोट्रूसिबल। प्रोट्रूसिबल मतलब मैं इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ, मैं अपनी टंग को बाहर निकाल सकती हूँ, लाइक दिस I can extend my tongue. So it is a protrusible flat structure which is attached posteriorly over the lower jaw. Posteriorly मतलब ये पीछे से lower jaw में attach करके होती है। lower jaw में पीछे से आपकी tongue attach करके होती है। So it bears taste buds for testing the quality of food, and it moves the food in the buccal cavity for crushing under the teeth, mixing with saliva and pushing the food during swallowing. Tongue cleans the teeth. टंग टीथ को क्लीन करती है, एंड ऑल्सो एज इन फोनेशन। हमारी टंग भी लिप्स के साथ हमारी फोनेशन यानी कि स्पीच में हेल्प करती है। फिर आपके आते हैं टीथ। टंग के बाद आपके टीथ है, दे आर हार्ड स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन क्रशिंग, च्यूइंग एंड कटिंग द फूड। दैट इज फिजिकल डाइजेशन में आपके टीथ हेल्प करते हैं। सो they are partially embedded in sockets of jaw bones में embedded होते हैं sockets of jaw bones में, ठीक है। and teeth are made up of dentine. teeth बने किसके होते हैं, dentine के बने होते हैं। so the exposed part of the teeth or crowns is covered by a shiny substance called enamel. जो आपको teeth का पार्ट दिख रहा है ये enamel की कवरिंग इस पे होती है। तो एक enamel एक shiny substance है, and enamel is the hardest substance of the body. पूरी बॉडी में enamel आपका सबसे ज्यादा hardest substance होता है। So enamel is the hardest substance of the body. पूरी बॉडी का सबसे ज्यादा hardest substance आपका enamel होता है। So enamel is the hardest substance of the body. So teeth किस में हेल्प करते हैं, teeth helps in crushing, chewing, grinding, सब में आपकी teeth ही हेल्प करते हैं। mastication में हेल्प करते हैं। mastication मतलब crushing of food, chewing of food, all right. So each jaw has 16 teeth और 4 types की 16 teeth होते हैं each jaw में। अपर जॉ में 16, लोअर जॉ में 16, टोटल 32। ऑलराइट, 4 टाइप के टीथ होते हैं। एक इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इंसिजर्स क्या होते हैं, वो चिसल शेप्ड होते हैं, वो आपकी खाने में बाइटिंग में हेल्प करते हैं, और वो टोटल 4 होते हैं। सेकेंड आपके कैनाइन्स होते हैं। कैनाइन्स जो होते हैं ड्रैगर शेप्ड होते हैं, वो आपके खाने की टीयरिंग में हेल्प करते हैं, और वो 2 होते हैं। और फिर आपके प्रीमोलर्स जो होते हैं वो आपकी ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, और वो कस्प्ड ब्रॉड एज्ड होते हैं, और वो 4 होते हैं। और मोलर्स जो होते हैं वो 6 होते हैं, सबसे ज़्यादा आपके मोलर्स होते हैं, एंड वो आपकी ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, और वो भी कस्प्ड ब्रॉड एज्ड होते हैं। सो ये आपके ऊपर 16, नीचे 16, टोटल 32 होते हैं। सो ह्यूमंस हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ। ह्यूमंस में 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, एक डेसिडियस टीथ और मिल्क टीथ। मिल्क टीथ को डेसिडियस टीथ भी बोला जाता है, और परमानेंट टीथ। सो डेसिडियस टीथ और मिल्क टीथ जो होते हैं, डेसिडियस टीथ और मिल्क टीथ occur in infants. जो infants में वो आते हैं, they start appearing at the age of 6 to 11 months and are completed by the age of 2 years. From 6 to 12 years, milk teeth are lost and are replaced with
permanent teeth which are 32 in number. Permanent teeth 32 होते हैं नंबर में, ठीक है. And the last molars are called wisdom teeth, और वो लेट आते हैं, and which appear late at the age of 18 to 25 years के बीच में वो आते हैं, ठीक है. That is known as last molars, उनको wisdom teeth बोला जाता है, and they appear late at the age of 18 to 25 years. अब हम बात करेंगे हमारे salivary glands की. Salivary glands, सबसे पहले there are 3 pairs of salivary glands. Salivary glands के 3 pairs होते हैं. एक पैरोटिड होते हैं, पैरोटिड आपके बिलो ईयर्स के बिलो होते हैं. दूसरा आपका सब मैक्सिलरी होता है, सब मैक्सिलरी एट द एंगल्स ऑफ लोअर जॉ होते हैं. और आपका सब लिंगुअल होता है जो बिलो टंग होते हैं. सो ये आपके 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के. सो अबाउट 1.0 to 1.5 liters of neutral saliva is poured into buccal cavity every day. हर रोज एवरी डे आपका 1.5 to 1.5 लीटर्स ऑफ न्यूट्रल सलाइवा जो है बकल कैविटी में पोर किया जाता है, डाला जाता है, ऑटोमेटिकली वो आ जाता है, ठीक है. सो सलाइवा में क्या होता है? सलाइवा कंसिस्ट ऑफ म्यूकस, वाटर, लाइसोजाइम और टायालिन भी होता है. टायालिन को आप लोग सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं, ठीक है. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस एंड वाटर, सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड स्लिपरी फॉर इजी क्रशिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बोलस. बोलस क्या होता है? जो खाना सलाइवा से फिर नीचे फैरिंग्स तक जाता है उसको हम बोलस बोलते हैं. जब तक वो स्टमक में आता है उसको हम बोलस बोलते हैं. फिर स्टमक से जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है उसको हम चाइम बोलते हैं, ठीक है. फिर आपका लाइसोजाइम होता है. लाइसोजाइम इज एन एंटी माइक्रोबियल एंजाइम विच किल्स बैक्टीरिया. उसके बाद आपका टायालिन और सलाइवरी एमाइलेज एक्ट्स ऑन स्टार्च. ये स्टार्च और ग्लाइकोजन पे एक्ट करता है ऑन ऑफ कुक्ड फूड के, क्योंकि हम अंदर कुक्ड फूड ही लेंगे, कच्चा खाना तो लेंगे नहीं. ऑफ कुक्ड फूड एंड चेंजेस द सेम इनटू मैल्टोस. वो उसको मैल्टोस में कन्वर्ट कर देता है. सो सलाइवा जो है, सलाइवा क्लीन्स द टीथ. इट प्रोवाइड्स सॉल्वेंट फॉर डिसॉल्विंग केमिकल्स प्रेजेंट इन द फूड. ये इसमें क्या होते हैं? इसमें सॉल्वेंट होता है जो कि डिसॉल्व करता है केमिकल्स जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, फॉर नोइंग द टेस्ट ऑफ द फूड. एंड इट कीप्स द बकल कैविटी, लिप्स एंड माउथ मॉइस्ट फॉर प्रॉपर फोनेशन. क्लियर? फोनेशन यानी कि स्पीच. आगे चलते हैं. फिर दिस वर सलाइवरी ग्लैंड्स. फिर आपका आता है फैरिंग्स. फैरिंग्स क्या होता है? इट इज फैलो. इट इज So pharynx, it is a funnel shaped common passage होता है of respiration and digestive tracts. ये एक funnel shaped common passage होता है किसका? respiration का और digestive tracts का. So pharynx, it is a funnel shaped common passage of respiration and digestive tracts which is also connected with the middle ear. At the end of mastication, mastication means crushing of food. At the end of mastication, nasal chambers are closed by rising of uvula, while glottis and opening of trachea is closed by the rising of larynx to come in contact with epiglottis. So masticated food enters pharynx in the form of bolus. bolus की फॉर्म में जो pharynx में खाना जो है masticated food जो है pharynx में bolus की फॉर्म में जाता है. And soon the muscles of pharynx contract and expand, contract to push the food into ईसोफेगस. जो मसल्स होती है फैरिंक्स की वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और खाने को ईसोफेगस में यानी कि फूड पाइप में पुश करती है. सो दिस एक्ट ऑफ पुशिंग फूड इनटू ईसोफेगस इज कॉल्ड स्वॉलोइंग, या फिर इसको हम डिग्लूटेशन भी बोलते हैं. डिग्लूटेशन और स्वॉलोइंग. ईसोफेगस. फिर आपका आता है ईसोफेगस. ईसोफेगस फूड पाइप का साइंटिफिक नेम है. जो ईसोफेगस होता है, इट इज अ नैरो मसल्स की बनी होती है. इट इज अ नैरो मस्क्यूलर डिस्टेंसिबल टिब्यूलर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. क्या होता है? विच दैट कनेक्ट्स फैरिंक्स विद द स्टमक. ये फैरिंक्स को स्टमक के साथ कनेक्ट करता है. विच और ये बहुत लंबी होती है, ठीक है. एंड इट पासिस थ्रू आपके नेक के पास करती है, थोरैक्स एंड डायफ्राम से ये पास करती है. एंड इट्स लेंथ इज 25 सेंटीमीटर की ये होती है. बहुत लंबी होती है, मसल्स की बनी हुई होती है. एंड ईसोफेगस डज नॉट कंटेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ईसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होते हैं, लेकिन इट्स वॉल सिक्रीट्स म्यूकस. इसकी वॉल्स जो है म्यूकस सिक्रीट करती है फॉर ल्यूब्रिकेशन ऑफ पासिंग फूड. ल्यूब्रिकेशन मतलब खाने को सॉफ्ट स्मूथ बनाने के लिए, ल्यूब्रिकेट करने के लिए उसकी जो वॉल्स है म्यूकस सिक्रीट करती है. सो
Action of salivary amylase on starch continues in esophagus. In esophagus, food is pushed towards stomach by a wave of alternate contraction and expansion called peristalsis. आपकी जो पूरी बॉडी में जो peristalsis हो रहा होता है, peristalsis का मतलब contraction and expansion of मसल्स, जिससे जो है खाना एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी कि फेरिंक्स से ईसोफेगस में, ईसोफेगस से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जो है आपकी इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जाता है. सो इन ईसोफेगस फूड इज पुश्ड टुवर्ड्स स्टमक बाय अ वेव ऑफ ऑल्टरनेट contraction and expansion called peristalsis. Peristalsis occur all along the rest of the alimentary canal. पूरी alimentary canal में हो रहा होता है and helps in pushing the food forward, जिससे जो खाना है आगे आगे जाता है. ठीक है, फिर आपका आता है stomach. Stomach क्या होता है? It is a large J shape का ये होता है. So it is a large J shape widest thick wall. जो stomach की walls होती है वो बहुत thick होती है. So it is a large J shaped widest thick wall but muscular organ of the alimentary canal which lies in the left upper part of the abdomen. लोगों को stomach आपका यहाँ पर नहीं, वो left upper part of the abdomen के left upper part में आपका stomach lie करता है. So which lies in the left upper part of the abdomen below diaphragm. diaphragm के नीचे, below diaphragm जो आपका stomach lie करता है. So it has a large number of branched and tubular gastric glands which secretes 400 to 800 ml of gastric juice during every meal. हर खाने के वक्त जो आपका gastric जो stomach है वो 400 to 800 ml of gastric juice जो है secrete करता है. ठीक है, अब stomach के कुछ parts भी होते हैं, एक cardiac, fundus and pyloric. Cardiac क्या होता है? It is the upper end of the stomach which is connected to the lower end of the esophagus. ये upper end होता है stomach के जो lower end of the esophagus से connected होता है. And the passage of food from esophagus to the upper part of the stomach is controlled by a muscle. एक muscle उसको control करती है, known as cardiac sphincter. उस muscle को आप बोलते हैं cardiac sphincter. So the passage of food from esophagus to the upper part of the stomach is controlled by a muscle known as cardiac sphincter. Second आपका fundus. Fundus क्या होता है? It is the middle part of the stomach. जो बीच का part होता है आपके stomach का उसको fundus बोलते हैं. Third आपका आता है pyloric. Pyloric क्या है? जो pyloric है it is the terminal part of the stomach, जहाँ पर terminate होता है stomach. So it is the terminal part of the stomach. ये स्टमक का टर्मिनल पार्ट होता है, खत्म होने वाला पार्ट होता है. सो इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्टमक एंड इट हैज एन ओपनिंग थ्रू विच फूड फ्रॉम स्टमक passes into the duodenum. Duodenum क्या है बच्चा? स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट आपका duodenum होता है. So it has an opening through which food from stomach passes into the duodenum. There is a muscle called pyloric antrum which controls the movement of food. So आपके कुछ पार्ट्स थे स्टमक के. अब फंक्शंस क्या होते हैं स्टमक के? स्टमक के फंक्शंस होते हैं टेम्पररी स्टोरेज. जो स्टमक है, स्टमक जो है एक टेम्पररी स्टोरेज एक्ट करता है. सो स्टमक फंक्शंस एज अ चेम्बर फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ अप टू 2 to 3 liters ऑफ इंजेस्टेड फूड. सेकेंड फंक्शन आपका हम बोल सकते हैं सॉफ्टनिंग द फूड. आपको HCl होता है आपके स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो जो स्टमक है वो HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूस सॉफ्टन्स द फूड, वो खाने को सॉफ्ट कर देता है. थर्ड आपका आता है डिसइंफेक्शन. सो द जर्म्स आर किल्ड एंड द फूड इज डिसइंफेक्टेड. जर्म्स को मारा जाता है और फूड को डिसइंफेक्ट किया जाता है. ये सारे फंक्शंस आपके स्टमक परफॉर्म करते हैं. देन आपका पार्शियल डाइजेशन होता है. जो स्टमक में होता है, जो खाना पार्शियली यानी कि आधा अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है. सो द पार्शियल डाइजेशन, फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. ठीक है, फिर आपका आता है churning. जो स्टमक होता है, स्टमक अंडरगोज चर्निंग मूवमेंट्स. दिस मिक्सेस द फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस. चर्निंग से क्या होता है, जो फूड है वो गैस्ट्रिक जूसेस के साथ जो आपके स्टमक में होते हैं मिक्स हो जाता है. एंड इट ऑल्सो ब्रेक्स द लार्जर, जो लार्ज पीसेस होते हैं फूड के, वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में आपके चर्निंग मूवमेंट से कन्वर्ट करते हैं. इट ऑल्सो ब्रेक्स द लार्जर पीसेस ऑफ फूड इनटू, हम बोल सकते हैं इट ऑल्सो ब्रेक्स द लार्जर फूड पीसेस ऑफ फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. ये सारा आपका चर्निंग करता है.
सो दिस वॉज चर्निंग. फिर आपका आता है रेगुलेशन ऑफ पैसेज इनटू इंटेस्टाइन, कि जो पैसेज है वो इंटेस्टाइन में रेगुलेट रहे हैं. सो ओनली हम चाइम किसको बोलते हैं? मैंने आपको बोला जो बोलस से स्टमक तक खाने को हम बोलस बोलते हैं, और फिर जो स्टमक से जब वो आगे जाता है उसको हम चाइम बोलते हैं. सो ओनली फाइनली ब्रोकन पार्शियली डाइजेस्टेड पल्पी फूड इज कॉल्ड चाइम is allowed to pass into the small intestine. किससे वो पास करता है? बाय पाइलोरिक एंट्रम ऑफ द स्टमक. पाइलोरिक एंट्रम जो मसल्स होती है उससे वो पास करते हैं. क्लियर. उसके बाद आपका आता है अब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्प्शन भी एक फंक्शन होता है स्टमक का. सो जो स्टमक है, सम सॉल्युबल कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर अब्सॉर्ब्ड इन द स्टमक, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ड्रग्स हो गए, अल्कोहल्स हो गए, मिनरल्स होते हैं. ये कुछ सॉल्युबल फूड कंपोनेंट्स होते हैं जो स्टमक में अब्सॉर्ब हो जाते हैं. ठीक है. सो सम सॉल्युबल कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर अब्सॉर्ब्ड इन द स्टमक. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, ड्रग्स, अल्कोहल, मिनरल्स एटसेट्रा. ऑलराइट. उसके बाद आपका एक और फंक्शन जो लास्ट फंक्शन है, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. सो दीज आर न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स formed by the invagination of the epithelium in the stomach. So ये कुछ functions थे stomach के. अब stomach में कुछ gastric juices भी होते हैं. एक HCl होता है, एक पेप्सिन होता है और एक रेनिन होता है. रेनिन जो होता है वो सिर्फ स्मॉल चिल्ड्रन में प्रेजेंट होता है. जो HCl होता है, इट मेक्स मीडियम एसिडिक फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट, इट किल्स जर्म्स एंड मेक्स द फूड सॉफ्ट. दूसरा आपका पेप्सिन होता है, इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स. और आपका रेनिन जो स्मॉल चिल्ड्रन में होता है, इट कन्वर्ट्स मिल्क प्रोटीन केजिन इनटू इनसॉल्युबल कर्ड. आई होप ये पूरा स्टमक आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम आगे चलते हैं. स्टमक के बाद आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना, वो बहुत ही छोटी सी जगह पर एकोमोडेट करके बैठा होता है, लेकिन ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है. लेकिन ये एक काइंड ऑफ एक्सकॉइल करके बैठा होता है. ठीक है. लेकिन ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल का, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. द लेंथ डिपेंड्स अपॉन द फीडिंग हैबिट्स, बीइंग larger in herbivores and comparatively shorter in carnivores. herbivores में जो small intestine है वो larger होता है और carnivores में वो उसके comparatively shorter होता है. So in human beings it is about 6 meter long and it is extensively coiled to get accommodated in small space. So it's extensively coiled to get accommodated in small space and it is the seat of major absorption and digestion. जो खाने की major absorption है, जो खाने की major digestion है, वो small intestine में ही होती है. So it is the seat of major absorption and digestion. For this it receives इसके लिए ये क्या करता है, ये receive करता है, it receives secretions from liver and pancreas. liver से bile receive करता है और pancreas से pancreatic juice receive करता है. For this it receives secretion from liver and pancreas and possess a number of digestive glands. इसमें बहुत सारे digestive glands होते हैं stomach में. So इतना I hope clear है. So it possesses a large number of digestive glands. The secretion of intestinal digestive glands is called succus entericus. जो secretion होती है, so the secretion of intestinal digestive glands is called succus entericus, इसको बोला जाता है. And intestinal walls is thrown up into numerous folds having finger-like projections called villi. So villi क्या करती है, इसके small intestine पे finger-like projections villi होती है. So villi increases the surface area for absorption of digested food and intestinal glands are mostly present at the bases of the villi. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम एंड इलियम. जो ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम इट इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये सबसे पहला पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का. फर्स्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आपका ड्यूडेनम होता है, फर्स्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम लिवर, लिवर से बाइल एंड पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से ये पैनक्रियाटिक जूस रिसीव करता है. सेकेंड ज्यूजेनम होता है मिडिल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो ज्यूजेनम क्या करता है, इट एक्ट्स ऑन ये जो ज्यूजेनम जो होता है वो आपका सीट होता है मेजर डाइजेशन का, सीट ऑफ मैक्सिमम डाइजेशन. मैक्सिमम डाइजेशन जो होती है वो आपकी ज्यूजेनम में होती है. सो सीट ऑफ मैक्सिमम डाइजेशन एंड प्रोड्यूसेस मेजर पार्ट ऑफ इंटेस्टिनल जूसेस. थर्ड आपका होता है इलियम. इलियम में क्या होता है, जो आपका थर्ड पार्ट इलियम होता है, इलियम में क्या होता है, इट इज द
जो डिस्टल कॉइल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, डिस्टल कॉइल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड इट इज विलाई आर मोस्ट अबंडेंट, इसमें विलाई सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सो विलाई आर मोस्ट अबंडेंट, एंड इसमें क्या होता है, विलाई आर मोस्ट अबंडेंट, एंड इसमें इट इज़ द distal coil part of small intestine and major absorption of digested food. absorption जो digested food की होती है वो इसमें सबसे ज़्यादा होती है, और जो इसमें सबसे ज़्यादा absorption जो होती है digested food की वो आपकी इलियम में होती है, और जूजिनम में मैक्सिमम डाइजेशन होती है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स बाइल। अब हम पढ़ेंगे कि बाइल क्या होता है, जो सिक्रीट करता है लिवर। सो बाइल जो बाइल होता है ये लिवर से सिक्रीट करता है। बाइल इज सिक्रीटेड बाय लिवर। इट इज येलोइश ग्रीन and alkaline. It has bile salts and bile pigments and digestive enzymes is absent. इसमें कोई digestive enzymes नहीं होती है। Bile neutralizes the acidity of chyme and protects duodenum wall from corrosion. ये duodenum की wall को corrosion से protect करता है। So bile neutralizes the acidity of chyme and protects duodenum wall from corrosion. It makes food alkaline for action of pancreatic juice. And a major function of bile salt is to break larger fat globules into fine globules, for action of lipase of pancreatic juice, and breaking of fat into fine globules is called emulsification. जो fat को हम fine globules में break करते हैं इसको emulsification बोलते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। दूसरा आपका पैनक्रियाटिक जूस है जो पैनक्रियाज सिक्रीट करते हैं। इट इज सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज एंड इट इज द मेजर डाइजेस्टिव जूस विच इज स्लाइटली एल्कलाइन, ये थोड़ा सा एल्कलाइन होता है। एंड 3 मेन एंजाइम्स इन प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में 3 मेन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन, amylase and lipase. Trypsin, proteolytic enzyme which functions in alkaline medium. It is secreted in inactive form of trypsinogen and breaks down proteins, peptones and proteoses to form peptides. ये उसको break कर देता है। Second आपका आता है amylase. इसको हम amylopsin, also known as amylopsin, and it acts on starch, glycogen and complex carbohydrates to form sugar like maltose. Third आपका आता है lipase, also known as stepsin, इसको stepsin भी बोलते हैं, and it is the main fat digesting enzyme. It is the main fat digesting enzyme and it acts on emulsified fat. ये emulsified fat पे act करता है। It acts on emulsified fat, मैंने आपको बोला कि fat को जब हम fine globules में convert करते हैं तो उसको emulsification बोलते हैं। So it acts on emulsified fat, जो हम fine globules में convert कर चुके उस fat पे act करता है। So it acts on emulsified fat to form fatty acids and glycerol. So then we have, अब हम थोड़ा सा liver के बारे में पढ़ते हैं। What is liver? It is the largest gland of the body. Liver जो है पूरी body का सबसे largest gland होता है। So it is the largest gland of the body. पूरी body का सबसे largest gland आपका liver होता है। It is the largest gland of the body and इसमें क्या होता है, it weighs, इसका जो weight होता है, it weighs about 1.5 to 1/40 weight of the body, and liver lies in the right side of the abdomen, right side of the abdomen पे जो आपका liver lie करता है, and it has 2 lobes, right larger lobe and smaller left lobe, and जो इसमें होता है a pear shaped yellowish green sac or gall bladder is attached on the interior surface of the right lobe, और जो gall bladder है, gall bladder concentrates and store liver, जो bile जो है वो आपका gall bladder में store होता है। So gall bladder concentrates and store bile is secreted by liver, लेकिन इसको वो store आपका gall bladder करता है bile, लेकिन उसको secrete liver करता है। So I hope liver it is clear। और जो आपका लिवर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, इट इज सॉफ्ट और रेडिश ब्राउन होता है कलर में, ठीक है। अब कुछ फंक्शंस होते हैं लिवर के क्या, इट स्टोरेज ऑफ आयरन, स्टोरेज ऑफ विटामिन, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन एंड secretion of bile and formation of glucose from excess organic acids and detoxification of harmful chemicals, ये सारा आपका liver करता है। So these are some functions of your liver। अब हम पढ़ेंगे about your last organ
of your alimentary canal, that is large intestine. So large intestine जो होता है, it is a distal region of the alimentary canal which is 1.5 to 1.8 meter long, and ये 1.5 से 1.8 मीटर लॉन्ग होता है, and it receives a semi-fluid mixture of undigestible matter, mucus and water. इसमें होता है, इसका मिक्सचर ये रिसीव करता है. It does not contain digestive glands. लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होते, and it is specialized to absorb water. ये absorb करता है वाटर, जितना पानी हो सके लार्ज इंटेस्टाइन absorb कर लेता है undigested matter से. It is specialized to absorb water from of the undigested matter for digestion के लिए ये सारा पानी जो है absorb कर लेता है. ठीक है. और इसमें some heavy chemicals and some heavy and toxic chemicals are poured onto this fecal matter पे, ताकि जो ये मतलब जो देखो, some heavy and toxic chemicals are poured on this fecal matter by walls of large intestine. कुछ heavy और toxic chemicals जो है इस fecal matter पे जो है large intestine की walls pour कर देती है. So इसको large intestine. अब large intestine के भी कुछ parts होते हैं. So अब कुछ parts होते हैं आपके large intestine में. सबसे पहले cecum, colon and rectum. Cecum जो होता है, it is small pouch that lies at the junction of small and large intestine, and it gives out a narrow blind tubular lymphoid outgrowth. Lymphoid मतलब ये lymph का बना होता है, एक yellowish pale एक kind of का बना होता है, that is lymphoid. So lymph का बना हुआ होता है, lymphoid outgrowth called Vermiform Appendix. जो appendix है एक vestigial organ है. Vestigial organ मतलब इसका किसी जमाने में कोई काम दिया होगा. वी नो, हम ह्यूमन बींग्स हैव इवॉल्व्ड, राइट. हम सब ने एवोल्यूशन देखा है. तो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है. इस वक्त वेस्टिजियल ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन को बोला जाता है दैट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी. पहले जमाने में इसका कुछ काम रहा होगा, लेकिन अभी इस वक्त अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी में. सो इट गिव्स आउट अ नैरो, cecum जो है, it gives out a narrow blind tubular lymphoid outgrowth called vermiform appendix, and it functions to reabsorb water. ये absorb को water को reabsorb करता है. It functions to reabsorb water and further absorption of nutrients. और ये nutrients को भी absorb करता है. Second we have colon. जो colon है वो आपका second part है large intestine का, and it is longest inverted U shape, and it bears alternate sac-like swellings called haustra, and it has 4 parts, एक ascending, transverse, descending and आपका sigmoid. So absorb ये क्या करता है, absorb water किससे absorb करता है, from undigested food and converts it into fecal matter. Number of bacteria reside in colon which feed on undigested matter. So बहुत सारे बैक्टीरिया जो है कोलन में होते हैं जो इसी अनडाइजेस्टेड मैटर पे फीड करते रहते हैं. ठीक है, इसको ही अपना काइंड ऑफ खाना बनाते हैं. ऑलराइट. सो नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिसाइड इन कोलन which feed on undigested matter. So gas formation of alimentary canal is mostly due to these bacteria. Alright, then third आपका पार्ट जो आता है that is rectum, last part of large intestine which is broader than colon. ये colon से broader होता है. ठीक है. So last part of large intestine which is broader than colon, and इसमें fecal matter from the colon is pushed into the rectum, from where it is adjusted through an opening called anus. So this was all your alimentary canal, and with this we finish our nutrition, whole nutrition. I hope you liked this video. If you really did, so do not forget to like, share and obviously subscribe to my channel. Thank you.